If you haven't started current affairs yet for prelims 2026, you haven't read any newspaper or any current monthly magazine till now, then the biggest mistake right now is panic and not the delay. Many aspirants feel that current affairs is too vast, too complex and impossible to control now. But in next 15 minutes, I'll show you a simple and realistic system to prepare current affairs right now also without any overload or confusion. Hi everyone, I'm Soumya and welcome to Think Basic folks. See, the reason why current affair feels heavy to us is not because we started it late. It feels heavy because most aspirants don't know what UPSC actually wants from current affairs. And that's why they try to read everything under the sun, collect too many PDFs, and probably watch daily current videos also on YouTube. And despite all of this, they still remain unsure. So let's fix this step by step. The first thing we must answer is what actually UPSC wants from current affairs. See, for prelims, UPSC does not want news reading, random news clips, articles, or editorials. It just purely wants only three things, that is, relevance to the static syllabus, basic conceptual understanding, and the ability to eliminate options logically. नाउ आई नो आप सोच रहे होगे दैट प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत वेग है, क्लियरली डिफाइंड नहीं है, बट दैट्स एग्जैक्टली वेयर पीवाईक्यूज कम्स टू आवर रेस्क्यू टू हेल्प अस फिगर आउट, व्हिच आई विल शो यू इन नेक्स्ट few minutes also. So for now, keep these three in mind while watching the rest of this video. Okay? But first, let me tell you that what you should stop doing immediately. देखो, you have to stop reading newspapers page to page, जैसे कि every single news is important और हर एक single news से question आ जाएगा. You need to stop hoarding monthly compilations thinking कि मैं ये सब पढ़ के खत्म कर दूंगा. इतना ज़्यादा होड़ भी मत करो चीज़ों को. And definitely stop feeling guilty about missing topics. Don't be in FOMO कि जो नहीं पढ़ा है बस वहीं से सारे 100 questions prelims में आ जाएंगे. Because see, current affairs is not about information or the quantity. It's only about the relevance which you need to understand. ठीक है? So now that the confusion is clear, let me show you a simple 4-step system that actually works and give results even if you are starting now or any current magazine yet for UPSC prelims. See, this is the basic approach which I myself and my selected peers swear by, as it gave desired positive results to us every single time. But yes, before we continue, let me briefly mention one structured support option for aspirants who feel that they need the guided preparation. Because मेंस एग्जाम ना अब सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं रह गया है, बट रादर इट हैज बिकम द प्योर गेम अबाउट हाउ यू एक्सप्रेस योर नॉलेज अंडर प्रेशर इन जस्ट 250 वर्ड्स विद इन दोज 7 minutes इन द एग्जाम हॉल. सी यू विल ऑल्सो रिलेट टू दिस कि बहुत बार ना हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है, कंटेंट हमें अच्छे से आता है, बट स्टिल हम उसे सही तरीके से कम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते. एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी नीड द डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, फॉर विच आई विल सजेस्ट यू टेक्स्ट बुक पास अली प्रोग्राम, जहां डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को भी एड्रेस किया जाता है टू ब्रिंग दैट वेरी एक्स फैक्टर इन योर प्रिपरेशन. Not only this, you will also get here last 6 years mains solve previous year questions apart from the 20 mains test just to analyze your performance. Here also you will be provided with the daily newspaper editorial analysis as well, which is actually considered the backbone for your entire mains preparation. So इस program को अभी join करो as the sale is going on using my code THINK22 to get straight 10% discount. Link और code description में mentioned है. So join the program and feel the difference yourself. So now coming back to our 4-step current affairs strategy, if you are starting late or you haven't read newspaper or any current magazine till now, then this is the only framework you need, which includes limited sources, static linkage, PYQ filtering, and most importantly, the one that will sail you through the prelims very comfortably is the weekly revision loop. ठीक है? तो चलो, let me explain each of these steps briefly. But yes, I want you to share with me in the comments that what challenges or the problems you faced in current affairs, whether it be newspaper reading or monthly magazine or any confusion जो आपको current affairs prepare करने में आता है. Share करो अपने problems comments में, because I will try to answer each and every comment. ठीक है? Now the first step that we have to follow in our 4-step method if we are starting late is the limited source. हमें सिर्फ लिमिटेड सोर्स ही पढ़ना है फॉर करंट अफेयर्स. अब इसमें 2 चीजें हैं, डेली न्यूज़पेपर एंड आर कंपाइलेशन, जो मंथली कंपाइलेशन है.
अब सबसे पहले हम बात करें डेली न्यूज़पेपर की, सो आई नो दैट देयर आर मोर देन 90% एस्पिरेंट्स जो एक्चुअली डेली न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है, दे जस्ट कीप डिपेंडिंग अपॉन द मंथली कंपाइलेशंस फॉर करंट अफेयर्स। अब लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, दैट इवन यूपीएससी नोज दिस ट्रिक कि हम सिर्फ इस पर डिपेंडेंट है, दैट्स व्हाई दे फ्रेम क्वेश्चंस जो डायरेक्ट आपके स्ट्रेट अवे न्यूज़पेपर से होते हैं, जो आपको कई बार कंपाइलेशंस में नहीं मिलेंगे। यूपीएससी हैज बिकम स्मार्ट दैट वे। एंड अनदर थिंग, जो डेली न्यूज़पेपर ट्राई भी करते हैं जब हम पढ़ने का, मेनी एस्पिरेंट्स मस्ट हैव फेल्ट दिस कि उन्हें ना पढ़ने में 5-6 घंटे लग रहे हैं या वो रेगुलरली पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। बिकॉज व्हाई दिस हैपेंस, वी टेंड टू रीड ईच एंड एवरी पेज। 22 पेजेस का एक एक न्यूज़पेपर होता है, हम उसे पढ़ने की पूरा ट्राई करते हैं कि हम हर एक पेज पढ़ डालें, बट ऐसा हमें नहीं करना है। इंस्टेड व्हाट वी हैव टू डू इज कि कैसे हमारा डेली न्यूज़पेपर नियर अबाउट 30 to 45 मिनट्स में कवर हो सकता है। सिंपल, हम यहाँ पे समझ लो, दे आर ओनली हार्डली 4, 5, 6 पेजेस जो आपको डेली न्यूज़पेपर से पढ़ने हैं। सबसे पहले द हिंदू की अगर बात करें तो आपको फ्रंट पेज पढ़ना है, उसके बाद सीधे यू हैव टू जंप टू द एडिटोरियल पेज, ये आप पढ़ोगे। देन उसके बाद डेली जो है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज होता है, वो पढ़ना है। डेली बेसिस पेज जो साइंस पेज होता है, इसको मिस मत करना। एंड संडे को द हिंदू न्यूज़पेपर में आपका टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज नहीं बल्कि FAQ पेज के नाम से एक पूरा पेज आता है, उसे पढ़ना है। दैट्स इट। तो आपको डेली बेसिस पे द हिंदू से टोटल बस 4 पेजेस पढ़ने हैं बस। वहीं अगर हम इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, देन अगेन जस्ट फ्रंट पेज यू हैव टू रीड, एडिटोरियल पेज यू हैव टू रीड, वहां पे एक्सप्लेन्ड पेज होता है, वो आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। एंड संडे को ओरिजिन पेज के नाम से एक सेक्शन आता है, वो आपको पढ़ना है। तो इसमें भी आपको सिर्फ 3 या 4 पेजेस पढ़ने हैं, ठीक है, बस आपको इतना ही पढ़ना है। अब एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे डेज के ऊपर प्री में पूछे जाते हैं, या कोई स्पेशल डिफेंस के आजकल क्वेश्चन आते हैं, CDS के ऊपर आते हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आते हैं। ये कैसे हम आंसर कर सकते हैं, बिकॉज ये वाले क्वेश्चंस ना आपको किसी भी कंपाइलेशन में यूपीएससी के लिए नहीं मिलेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे अभी आर्मी डे निकला था, ठीक है, आप कमेंट्स में मुझे बताओ कि आर्मी डे कब सेलिब्रेट होता है। तो जब आर्मी डे हुआ या ऐसे कोई इंपॉर्टेंट डेज आते हैं ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डे हो गया हमारा, या वोटर डे हो गया, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है, एक स्पेशल पेज, चाहे वो द हिंदू हो चाहे वो द इंडियन एक्सप्रेस हो, एक पेज आता है जिसपे कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसको आप पढ़ लीजिए। एंड उसका जो डे है उसको एक कहीं पे आप नोट डाउन कर लो या उसको याद रख लो। बिकॉज प्री में ये जो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, ये बिल्कुल आपके फ्री के मार्क्स होते हैं, ये आपके पक्के हो जाएंगे, ये आपको किसी मंथली कंपाइलेशन से नहीं मिलेंगे, बट लेकिन ये सिर्फ वही आंसर कर पाएंगे जो एक्चुअली डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो अब आप एक चीज यहाँ पे समझ लो, दैट यस यू हैव टू रीड डेली न्यूज़पेपर, चाहे आपके पास फ्री में अभी 4 महीने बचे हों या 3 महीने ही क्यों ना बचे हों, पढ़ना जरूरी है। प्लीज इसको मिस मत करना, बिकॉज ये वाले जो फ्री के मार्क्स है ना, ये आपको आराम से कम 6 से 8 मार्क्स दिला सकते हैं, एंड इट कैन चेंज द एंटायर गेम। सो यू हैव टू रीड दिस। इसके अलावा जो आपको पढ़ना है, दैट इज विजन IAS का मंथली करंट अफेयर का, या तो आप कंपाइलेशन पढ़ सकते हो, या प्रीलिम्स के लिए अब PT 365 आनी स्टार्ट हो गई है। ऑलरेडी विजन IAS की वेबसाइट पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमी और एनवायरमेंट की अपलोड हो चुकी है, दोनों ही लैंग्वेजेस में, इंग्लिश और हिंदी में ये अवेलेबल है। इसको आप जो है फॉलो कर सकते हो। अगर आप मंथली भी फॉलो कर रहे हो, देखो PT में तो ऑलरेडी विजन IAS में अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स ही न्यूज कवर्ड है। मंथली भी अगर आप फॉलो कर रहे हो तो भी आप अप्रैल ऑनवर्ड्स ही आप पढ़ोगे, पुराने आप छोड़ दीजिए। दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है, मंथली वाले में थोड़ा मेंस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रहता है, वो एक्स्ट्रा एडेड है। PT आई विल रिकमेंड कि अब आप PT पे शिफ्ट हो जाओ तो बेटर है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको हमें पढ़ना कैसे है, ये एक क्वेश्चन आता है, बिकॉज हम सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं, याद कुछ रहता नहीं है, तो फिर फायदा क्या है ऐसे मंथली कंपाइलेशन को पढ़ने का। तो सबसे पहले तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आप सेट कर लो कि आपको इसी प्रायोरिटी में जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको पढ़ना है। कुछ PT बुक्स आपको एक्स्ट्रा भी विजन IAS में मिल जाएंगी टुवर्ड्स द एंड, जैसे कि उनका प्लेसेस इन न्यूज वाला हो गया, या पर्सनालिटीज के ऊपर वो एक छोटी सी बुकलेट्स निकालते हैं जो इन न्यूज रहती है। काफी क्वेश्चंस आपको प्री में यहाँ से भी स्ट्रेट अवे मिल जाते हैं, जैसे रामानुज के ऊपर क्वेश्चन आया था 2022 में, सो यू कैन आंसर देम इजिली। अब इसका ट्रिक क्या है कि अगर आप सपोज करिए कि PT बुक पढ़ रहे हैं आप किसी एक सब्जेक्ट की, आपको सब्जेक्ट वाइज इसी ऑर्डर में पढ़ना है जो मैंने बताया, तो आपने एक सब्जेक्ट उठाया और उसको 5 दिन दिए, मंडे टू फ्राइडे, उसको आपको खत्म करना है। डेली 25 से 30 पेजेस का एवरेज आपको मेंटेन करके चलना है कि हम इतना जो है इसको कवर करेंगे। तो ये आपको 2 लिमिटेड सोर्सेज हैं आपके, डेली न्यूज़पेपर हो गया और PT 365 हो गया। इस तरीके से आपको इसे फॉलो करना है, ठीक है।
Now after following this first step, let's discuss the second step. Second step में आपको क्या करना है, static linkage. Basically whatever news you are reading, चाहे वो डेली न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हो, PT365 फॉलो कर रहे हो, उसमें देख रहे हो, या करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन में देख रहे हो, इफ यू कैन लिंक एनी न्यूज विच यू रीड टू द स्टैटिक पोर्शन फ्रॉम अ स्टैंडर्ड बुक, चाहे वो आपका पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो, इकोनॉमी की विवेक सिंह हो, रमेश सिंह हो, कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो, शंकर आईएएस हो एनवायरमेंट के लिए, then immediately go read and revise that particular part from the book immediately. जो भी static portion linked है, उसको करंट अफेयर्स की न्यूज पढ़ते टाइम उसी समय आपको जाकर के उतना पोर्शन रीड एंड रिवाइज करना है. फॉर एग्जाम्पल ये विजन आईएएस की PD365 है आपकी इकोनॉमी के लिए. अब इसके इंडेक्स में मैं अगर सबसे पहली न्यूज देखूं तो आरबीआई से रिलेटेड उसकी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, जो आरबीआई का फंक्शन है, सरप्लस ट्रांसफर जो वो करते हैं सेंटर को, उसके ऊपर न्यूज है, फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर न्यूज है. तो मेरा काम है कि जब मैं ये न्यूज पढ़ रही हूं तो ये सारी न्यूज अगर आरबीआई से रिलेटेड है तो मैं आरबीआई जा करके अपनी बुक से तभी देन एंड देयर पढ़ूंगी. उसका क्या फंक्शन है आरबीआई का, ये कब बनी थी, ये अभी करंट न्यूज में क्या क्या चल रहा है, वो आप यहां से कवर कर रहे हो. तो बेसिकली इस तरीके से आपको स्टैटिक और करंट अफेयर की न्यूज का लिंकेज मेंटेन करना है. एक और एग्जांपल हम देखते हैं. फॉर एग्जांपल थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे अब जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिफॉर्म के बारे में बात हो रही है. अब अगर हम टैक्सेशन पढ़ रहे हैं तो इंडिया में फिस्कल पॉलिसी के अंडर क्या टैक्सेशन स्ट्रक्चर है इंडिया का, इसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है, आपका कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है. तो ये एक बेसिक्स आपको स्टैटिक जो बैकग्राउंड है, जब आप करंट अफेयर्स का न्यूज पढ़ रहे हो ना, उसके साथ देन एंड देयर जाकर के आपको बुक से तभी के तभी इमीडिएटली रिवाइज करना है. ठीक है. Now after this, the third step, which is probably one of the most important ones, is the MCQ practice and PYQ filtering. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि डिस्पाइट आप ये 4 स्टेप्स फॉलो कर लो, तब भी आई नो दैट मोर देन 80% एस्पिरेंट्स विल मेक सम कॉमन मिस्टेक्स, जो मैं इस वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगी, दैट हाउ टू अवॉइड देम. ठीक है, तो ये हम एंड में डिस्कस करेंगे. अभी हम एक बार स्टेप्स डिस्कस करते हैं. अब यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस पे बेसिकली आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे कुछ नहीं करना है. आज से अभी से जब आप ये वीडियो देख रहे हो, डेली बेसिस पे आपको 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस एमसीक्यूज डेली प्रैक्टिस करने हैं. अब क्वेश्चन है कि ये आप करोगे कहां से आपको मिलेंगे ये. तो सबसे पहले तो जो भी आप विजन आइज का पीटी हो गया आपका, या मंथली मैगजीन आप फॉलो कर रहे हो, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, वहां पे आपको इस तरीके का ये स्मार्ट क्विज का स्कैनर मिलेगा, जिसको आप स्कैन करके, जो क्यूआर कोड है बेसिकली, इसको आप स्कैन करोगे तो इस तरीके की आपकी विंडो खुलेगी जहां पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो. तो ये तो आपका विजन आइज के थ्रू प्रैक्टिस होते रहेंगे जो भी आप पढ़ रहे हो. इसके अलावा एक और चीज, एक और इंस्टीट्यूट आपको फॉलो करना है. अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो डेली इनसाइट आईएएस पे जाओ, वहां पे करंट अफेयर्स की क्विज रहती है. आपको इन टोटल सब मिला के बस 10 क्वेश्चन करने हैं, उससे ज्यादा मैं आपको बोल भी नहीं रही हूं, उसे प्रैक्टिस करना है. और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप दृष्टि आइज से प्रैक्टिस करो. देखो, प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने से आप पढ़ते जाओगे, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है ना कि हमें जो है याद तो कुछ रहता नहीं है, रिटेन तो कुछ होता नहीं है, और जब क्वेश्चन आता है तो हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते. वो आपकी जो प्रॉब्लम है ना, ये आपका अकेले सॉल्व कर देगा अच्छे से. अब पीवाईक्यू फिल्टरिंग का क्या मतलब है ये समझ लो. यहाँ पे बेसिकली आपको जो लास्ट 10 to 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसमें आपको स्कैन करके फिगर आउट करने हैं, निकालने हैं रेलेवेंट रिपीटेड थीम्स. अब इसका पर्पस ये है कि ये आपको एक तो ओवर रीडिंग करने से बचाएगा, बहुत ज्यादा फालतू का टाइम वेस्ट करने से आपको बचाएगा. एंड सेकेंडली इट विल टेल यू दैट इन हाउ मच डेप्थ यू हैव टू रीड अ पर्टिकुलर करंट अफेयर, अ न्यूज और अ टॉपिक इन जनरल. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ लिखे भी हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में हम बात करें, जो भी न्यूज में इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका इलेक्शन कमीशन हो गया या सीबीआई हो गया, उनके पावर्स के ऊपर क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ चुका है. इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट्स, बिकॉज आरबीआई टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसी जो चेंजेस करते हैं उसके बारे में जो है बात करते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्टेटमेंट्स आती हैं, या उनके फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर बात हो गई, या उनको जो भी सेंटर को पे करना होता है सरप्लस, उसके ऊपर बात हो गई, किसी भी तरीके से बात हो गई. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. वही एनवायरमेंट में आपको क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन पे तो हर एक साल में आपको एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 क्वेश्चन इन दोनों ही टॉपिक से आते दिखेंगे. इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी हो गया आपका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. तो बेसिकली आपको रिपीटेड थीम्स निकालने हैं. अगर आपको चाहिए कि मैं आपको इसमें हेल्प करूं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, सो दैट मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वाइज वीडियो में कवर कर सकती हूँ, इन रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स ऑल्सो एंड द स्टैटिक पार्ट ऑल्सो, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. लेकिन आप मुझे कॉमेंट्स में बताना दैट वेदर आई शुड डू इट और नॉट.
ठीक है। Now after this comes the fourth step, which is the weekly revision loop. Daily आपको पैनिक नहीं करना है कि मैंने पढ़ा उसको मैं रिवाइज करने बैठ गया, नहीं. What you have to follow is that your revision system should look like this. You have to read it, link it from the static part, and then you have to revise it. इसमें भी आपको डेली पैनिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ वीकली बेसिस पे करना है. कैसे? आपके जो सैटरडे संडे होंगे ना, आपने फर्स्ट 5 डेज में तो मंडे टू फ्राइडे आपने पीटी का एक सब्जेक्ट का बुक सपोज करो कवर किया कंपाइलेशन, फिर उसी को आपको सैटरडे संडे को रिवाइज करना है, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट करोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड यू विल नॉट बी मेकिंग एनी नोट्स एट ऑल. इस चीज में मत फंसना, नो नोट मेकिंग, ध्यान रखना. एंड रिवाइज करना आपके लिए एक दिन नहीं बल्कि मैंने यहाँ पे 2 दिन रखे हैं. सो इट इज इजिली पॉसिबल बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर प्रीलिम्स कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन द कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स. ठीक है. सो दीज आर द 4 स्टेप्स, ये तो हमने समझ लिए. बट नाउ लेट मी ऑल्सो टेल यू 3 कॉमन मिस्टेक्स दैट मेनी एस्पिरेंट्स विल डेफिनेटली मेक. सबसे पहला है मेकिंग बल्की करंट अफेयर नोट्स. ये नोट्स बनाने में ही ना आपका इतना टाइम वेस्ट होगा कि आप रिवीजन तो छोड़ो, आप कवर तक नहीं कर पाओगे करंट अफेयर की सारी बुकलेट्स. प्लस आपको डेली न्यूज़पेपर माइंडलेसली नहीं पढ़ना है. जैसे मैंने अप्रोच जो आपको बताई है वही फॉलो करना है. एंड कंपेयरिंग विद अदर्स, अपने आप को ना कंपेयर मत करो कि दूसरे ने तो अभी तक सारी मंथली पढ़ ली, विजन आइज की भी पढ़ ली, इनसाइट्स की भी पढ़ ली, किसी और इंस्टीट्यूट की भी पढ़ ली, लेकिन मैं एक भी नहीं पढ़ पा रहा हूं या पढ़ पा रही हूं. इस कंपैरिजन में मत फंसो. जो मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए हैं बस आप वही फॉलो करो. इट विल हेल्प यू एंड इट विल हेल्प यू सेल करंट अफेयर्स इन प्रीलिम्स 2026 नो मैटर व्हाट. ठीक है. बिकॉज ऑलवेज कीप इन माइंड दैट मोर मटीरियल नेवर मीन्स बेटर प्रिपरेशन, इट ओनली मीन्स द डूबियस प्रिपरेशन. ये चीज ध्यान रखो. Therefore, if you start today and follow this system calmly, current affairs will stop feeling heavy within just next 1 to 2 weeks itself. You don't need to cover everything. You need to cover only the relevant things. Okay. So if this video brought some clarity, let me know in the comments and stay connected with Think Basic folks. Thank you so much for watching. बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे next video में.